ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج ہم روبرو کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک کہاوت تھی کہ جہاں درخت وہاں بخت، لیکن لگتا ہے کہ ہم اب اس کہاوت کو بھول چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جس بے دردی سے درختوں کو کاٹا گیا اس کے نتائج تو ہم فوگ کے سیزن میں اور سموگ کے سیزن میں ہم برداشت کیا کرتے ہیں۔ یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس وقت ہم خیبر پختونخوا کے ناردرن پارٹ میں موجود ہیں۔ 1 ارب درختوں کے حوالے سے جو 1 ارب درخت لگا رہے ہیں وہ تو بہت خوش ہیں، وہ باقاعدہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ناقدین ہیں وہ اس پر خصوصی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو درخت لگے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم ریلیونٹ آفیشل سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا واقعی درخت لگائے جا رہے ہیں، اور لگائے جا رہے ہیں تو اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کا میکنزم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے اگر واقعی 1 ارب درخت لگایا جا رہا ہے تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اگر یہ جنگلات میں ریجنریشن ہو رہی ہے یا زمینوں پہ درخت لگائے جا رہے ہیں نئی زمینوں پہ، تو ارد گرد کے لوگوں کا کیا تاثرات ہیں، وہ کیا فیل کرتے ہیں، ان کو کیا فوائد ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کرٹکس بات کر رہے ہیں، ہم وہ سوالات آج ریلیونٹ آفیشلز کے سامنے رکھیں گے، ریلیونٹ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، متعلقہ حکام کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات مانگیں گے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں 1 بلین ٹری سونامی کے حوالے سے، یعنی خیبر پختونخوا میں 1 ارب درخت لگانے کے منصوبے کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اور ہم خیبر پختونخوا کے ناردرن ایریا میں اس پر موجود ہیں۔ ہم اس پورشن میں بات کریں گے ریلیونٹ آفیشلز کے ساتھ جو کہ اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن پر صوبائی حکومت نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب نظر شاہ صاحب، سیکرٹری فارسٹ۔ آپ ناظرین، عمران خان کا جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ شاہ صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور آج ہم نے اسپیشلی ان کے ساتھ ٹائم رکھا تھا کہ ٹائم نکالیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ناظرین محمد صدیق خان خٹک صاحب، یہ خیبر پختونخوا کے چیف کنزرویٹر ہیں۔ یہ سارے اس ایشو کو، ان امور کو براہ راست ان کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ یہ بہت شکریہ خٹک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر علی خان صاحب، یہ کنزرویٹر ہیں اس ناردرن پارٹ آف خیبر پختونخوا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایریا ان دی انڈر سپروائزیشن آف اظہر علی خان صاحب ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، ایک عجیب سی بات ہے کہ موٹر وے بنتے ہیں، روڈز بنتی ہیں، میٹروز بنتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا آیا کہ ہم لیٹس پلانٹ 1 بلین ٹری، 1 ارب درخت لگائے جائیں پاکستان میں۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں ویسے فارسٹ کا پورشن کیا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہے، اور اس پروگرام کے تھرو آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ پراچا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ اس اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ کو آپ نے سلیکٹ کیا اور اس پہ ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی آپ سے بات کریں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ کیا تھا۔ بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک انسانیت کی بقا کا پروجیکٹ ہے۔ جہاں تک میٹرو کی بات ہے، روڈز کی بات ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا سروائیول ہے۔ پودوں کے بغیر پانی نہیں ہے اور پانی کے بغیر پودے نہیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بغیر اس کائنات میں روئے زمین پہ زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔
یہ جو پروجیکٹ کی کنسیپشن ہوئی یہ واحد پروجیکٹ ہے جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کنسیو کیا اور شاید یہ ان کے الیکشن کا مینڈیٹ اس الیکشن مینیفیسٹو میں تھا. اور جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس صوبے میں خیبر پختونخوا میں بنی تو انہوں نے یہ ایک بہت ہی ایمبیشیس پروجیکٹ سلیکٹ کیا جو کہ شروع میں پہلے 2 سال تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ امپاسبل ہوگا, پھر ہمیں لگا کہ جی پاسبل ہوگا, ٹائم زیادہ اس پہ لگے گا. تو بہت ہی مشکل اور بہت ہی ایمبیشیس پروجیکٹ تھا دونوں لحاظ سے کہ مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو دیکھیں. کتنے پلانٹس لگ چکے ہیں جن کو آپ فارملی کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنے پلانٹس ہم لگا چکے ہیں خیبر جی پختونخوا؟ الحمدللہ جہاں پہ ابھی تک ہماری جو WWF نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہم نے کروائی ہے کہ انٹرنیشنل باڈی ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق ہمارا جو سروائیول پرسنٹیج ہے وہ 85% ہے. یعنی جتنے پودے لگے ہیں وہ 85% تک سسٹین کر سکتے ہیں, اور یہ WWF کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اور یہ دنیا کا ہائیسٹ سروائیول پرسنٹیج ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 1 بلین کا, اور الحمدللہ ہم نے 1 ارب اور 18 کروڑ جو ہیں وہ پودے ہم اگا چکے ہیں ابھی تک. اور بیسیکلی ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا تھا 5 سال میں, اور 5 سال سے ریڈیوس کر کے ہم اس کو لے آئے 3 سال میں. اس کی بھی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو یہ کمپلیٹ نومبر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اسی نقطے پر رہیے گا. خٹک صاحب آپ کے پاس آؤں گا. میں ایک سادہ لے مین, میرے ویور دیکھنے والے, میں کیسے سمجھوں کہ یہ گنا گیا ایک ایک پودا کہ ہاں یہ 1 کروڑ ہو گیا, یہ 1 کروڑ 1 ہو گیا, یہ 50 کروڑ 50 ہو گیا, یہ 75 کروڑ 70 ہو گیا, اور یہ 1 ارب سے کراس کر گیا. ہم کیسے گنتے ہیں اس چیز کو؟ یہ بہت بڑی تنقید کی جاتی ہے. میں اس پروگرام میں وہ پوائنٹس بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک کنسرن کے ہیں, جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہو رہا ہے. کیسے گنیں گے ہم؟ سر یہ بہت سمپل ہے. ہم نے جو پودے اگائے ہیں اس کے 3 طریقہ کار ہیں. ایک وہ پودے ہیں جو ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں, وہ اپنے ذاتی زمینوں کھیتوں کے باؤنڈری پر لگاتے ہیں. وہ تو ہم نے گن کے دیے ہیں, رجسٹر میں ان کی انٹری ہوئی ہے, ان سے ہم نے رسیدی لی ہے, ان سے ہم نے دستخط لیے ہیں. آپ نے مجھے پودے دے دیے, تو میں کیوں حفاظت کروں گا؟ میرا کیا اس میں دلچسپی, کیا فائدہ, کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کو جو پودے ہم نے دیے ہیں ہم نے آپ پر امپوز نہیں کیے, آپ خود آئے ہیں, آپ نے خود ڈیمانڈ کیا ہے, لوگوں نے خود جا کے درخواست کہ میری زمین ہے, میری ریکوائرمنٹ ہے. ابھی معاشرے میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ فائر ووڈ کے لیے ان کی ضروریات ہیں, ان کے جانوروں کے لیے فاڈر کی ضروریات ہیں, اور ان کو چھوٹا ٹمبر کی ضرورت ہے. تو وہ جس طریقے سے گندم ان کی ضرورتیں اگاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زمینوں پہ درخت بھی اگائیں. یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ہو گیا کہ آپ نے لوگوں میں جنہوں نے درخواست کی مانگے آ کے آپ نے ان کو بالکل, وہ ہمارے رجسٹر میں 1 by 1 نیم, شناختی کارڈ, ان کی ٹیلی فون نمبر سارے تعداد دے دیے. دوسری یہ ہے کہ یہ وہ پودے ہیں جو ہم نے خود لگا دیے ہیں زمینوں پہ لائنز میں. وہ آپ کوئی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ صوبے کے کس حصے میں یہ آپ نے خود چترال سے لے کر ڈی خان تک. اس میں جو لوگوں کی زمینیں ہیں اکثر جگہوں پہ ان کی زمینوں پہ ہم نے لگا دی ہیں, کیونکہ ہمارے جو فارسٹ کور ہم نے بڑھانا ہے تو ظاہر ہے جو جنگل ہمارے ساتھ ہیں وہ تو ہیں. اب جب ہم کور بڑھائیں گے فارسٹ کا تو ظاہر ہے ہم نے مزید ایریا کو جانا ہے. سرکار کے ساتھ ایریا مزید تو ہے ہی نہیں, تو ظاہر ہے ہم نے پرائیویٹ لوگوں کو ویسٹ لینڈ پہ کھیتوں پہ اس طرح پودے لگانے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے نیچرل ریجنریشن کو انکریج کرنا ہے. اب نیچرل ریجنریشن کے لیے جدھر اب ہم کھڑے ہیں ان کا میکینزم یہ ہے کہ ادھر ہم سیمپلنگ کرتے ہیں. مطلب ہم نے بہت بڑے ایریا انکلوز کیے ہیں, تقریباً 4500 یعنی 4500 انکلوزر اسٹیبلش کیے ہیں. اور ہر انکلوزر کا کتنا ایریا ہے؟ یہ 50 ہیکٹیئر سے لے کر زیادہ بھی ہے, 40 ہیکٹیئر بھی ہیں. اویلیبلٹی ایوریج 66. میں تھوڑا سا راجہ صاحب آپ کو مزید سمپلیفائی کرتا ہوں اسی آپ کے کوشچن کو. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اتنی زمین کہاں پہ ہے, پودے کہاں پہ ہیں, 1 ارب زمین وہ آپ پر اسکوائر فیٹ کے اس پہ آپ لگائیں تو اتنے تو پودے, اتنا پاکستان ہی پورا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کے پی کا ٹوٹل ایریا ہے 74,000 اسکوائر کلومیٹر ایوریج آلموسٹ. اس میں ہم نے جو کیا ہے پر ہیکٹر میں ہم نے 1075 پودے لگائے, جہاں پہ ہم نے پر ہیکٹر 1075 آن ایوریج, اور 1 ہیکٹر میں 20 کنال زمین آتی ہے. جو واٹر لاگڈ اور سیلائن ایریاز ہیں وہاں پہ ہم نے یہ جو
1050 पौधे आते हैं, ये 10 बाई 10 की स्पेसिंग पे आते हैं। जब वाटर लॉग्ड और सैलाइन ज़मीनें हैं उनके अंदर हमने 5 बाई 5 की स्पेसिंग पौधे लगाए हैं, वहाँ पे तकरीबन अराउंड 3000 to 4000 पर हेक्टेयर आ रहे हैं। अब हमारे पास जितना भी एरिया है वो ईयर मार्क्ड है, GPS कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं पूरे सूबे के। लाइक कि आप चित्राल को सिलेक्ट कर लें, चित्राल के अंदर से कि हमारी 57 साइट्स हैं कि जहाँ पे प्लांटेशन हुई है, ठीक है। उन साइट्स के GPS कोऑर्डिनेट सेपरेटली अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। यानी मैं खुद भी जाके आप वो इंडिपेंडेंट साइट जाके मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, वहाँ देख सकता हूँ आप जाकर। किसी से पूछे बगैर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताए बगैर, सिर्फ लोकल लोगों को मिल के आप GPS लेके चले जाएं और वहाँ पे ये देख लें ये साइट है और इस पे मेजरमेंट ये उसी बहुत करें। बड़ी बात आप कर जी, रहे हैं मैं कि एक आम आदमी GPS कोऑर्डिनेट्स लेके जाकर वहाँ देख सकता है कि ये पौधा कितना था, कैसा था। इसी नुक्ते पर रहेगा। अगर एक सेकंड मैं थोड़ी सी मजीद इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। दूसरा जो प्राचा साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि ये पौधे है ही नहीं है जी, पौधे गायब हैं। कोई कहता है जी कि इनकी पौधों ने सलमानी टोपी पहन ली है, नजर नहीं आते हैं। आज कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है। आप नवंबर दिसंबर 2014 का गूगल से आप मैप उठाएं और उसको किसी आज एक के एरिया मैप से कंपेयर करें। कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं, ये यहाँ पे इस फॉरेस्ट में आप 2014 का गूगल से इसके इमेजेस आप लें, आज के आप इमेजेस लें। चित्राल की मैं बात कर रहा हूँ, आप चित्राल के 2014 के इमेजेस लें, आज के इमेजेस ये लें। बड़ा चैलेंज है जो कि आप इस प्रोजेक्ट के मुखालफिन के लिए भी छोड़ रहे हैं। अदर अली खान साहब, पौधे आपने लगा दिए, चाहे वो आपने जिम्मेदार को दिए, चाहे आपने जो सीड ड्रॉप किया उससे कर दिए, या ये रीजनरेशन जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं, लेकिन निगरानी का क्या मैकेनिज्म है? मसलन अगर इसी जगह पे आपने इनक्लोजर बनाया है, खतरात तो हो सकते हैं ना पौधे को, बहुत सारे नेचुरल अननेचुरल खतरात होते हैं। निगरानी का क्या मैकेनिज्म? आप तो इस एरिया के इंचार्ज हैं। जितने हमने क्लोज किए एरिया, हमारे जो भी डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट हैं, उसमें जहाँ पर भी हमने क्लोज किए वहाँ पर उसकी कम्युनिटी जो है, जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जो उसको यूज़ करते थे ग्रेजिंग के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, उन लोगों में को एतमाद में लेकर उनको ऑर्गेनाइज करके उनकी कमेटी बनाई है। उस कमेटी से फिर उन लोगों ने एक आदमी हमें निगहबान दिए कि जो बाकायदा चौकीदार है। बिल्कुल चौकीदार है वो लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि एरिया बहुत बड़ा है, एक आदमी वो पूरा ही नहीं आ सकता कि वो पूरा राउंड करे एक दिन में पूरे इलाके का। तो एक जगह पे वो होगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो तो आप कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा, लेकिन वो आ भी जाए सारा दिन, तो बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक आदमी कैसे उस एरिया को प्रोटेक्ट कर? ये असल में जिस वक्त ये सवाल आपका उस वक्त है कि जिस वक्त हम निगहबान अपनी मर्जी से रख कर लोगों की विल के खिलाफ हम कोई किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस वक्त हम सब लोगों को अपने साथ मिला रहे हो, तो फिर वो हमारा निगहबान उन चीज़ों को रोकते हैं जो एस्ट्रेग्रेज, मतलब है कि वो मर्जी से नहीं, वैसे अगर कोई चीज आ गई, जो लोकेलिटी है, जो इलाका है, उनकी दिलचस्पी है कि इसकी हिफाजत की जाए। शाह साहब, ये जो ओनरशिप है ना इस प्रोजेक्ट की, जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो लोकल कम्युनिटी की ओनरशिप है और लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और कोई भी ऐसी इंटरवेंशन कि जहाँ पे लोकल्स इन्वॉल्व हों, अगर आप वो लें तो वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की शक्ल में वो सामने आएगा। इसमें मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इस सूबे की तारीख में, इस ज़्यादातर मुल्क की तारीख में पहली बार इस लेवल का प्रोटेक्शन हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं, हमारे फॉरेस्टर और ये जो निगहबान हमने प्रोटेक्शन के लिए हायर किए हैं, अभी तक 10 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं फाइटिंग अगेंस्ट टिम्बर माफिया, लैंड माफिया एंड फायर फाइटिंग के दौरान 10 लोग शहीद हो चुके हैं। ये इन अ वे आप मुझे खतरात भी बता रहे हैं कि इन पौधों के लिए टिम्बर माफिया खतरा है। जी एग्जैक्टली, लैंड माफिया खतरा है लिए, और आग भी तो ये दरख्त काटने वाले काट रहे हैं। एग्जैक्टली उसके की फैक्टर्स हैं जिस वजह से आग लगती है। और 10 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, 6 लोग हमारे जख्मी हैं, और उन 6 जख्मियों में से 3 जो है फिजिकली डिसेबल हो चुके हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स सेंस ऑफ ओनरशिप।
प्रेजेंटली जो प्रेजेंट रिजीम है इसकी जो ओनरशिप है फॉरेस्ट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, और जो हमारे मुल्क जो सीरियस बीइंग 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, तो इनका कंसर्न पॉलिटिकली बहुत ज्यादा है। नहीं, वो तो हो जाता है कंसर्न, तो स्मॉग आ गया, आधा मुल्क हमारा बंद हो गया था, अभी नवंबर की बात है, तो उसके लिए तो नादरीन इस तरह के इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी हैं। हमारा प्रोग्राम जारी है, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू की ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम, उसकी मनसूबाबंदी, उसके मुख्तलिफ मराहल, उसकी टेक्निक्स, उसके मेकनिज़म के हवाले से। हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न पार्ट में मौजूद हैं। ये एक यकीनन फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, कुछ एनॉमलीज नज़र आ रही हैं। मसलन यहाँ के दरख्त बहुत बड़े हैं और सारे बराबर दरख्त हैं। नेचुरल ग्रोथ में होना ये चाहिए था कि कुछ दरख्त बहुत बड़े होते हैं, यानी बहुत ही बड़े जो दरख्त हैं, कुछ दरमियाने दरख्त होते हैं, कुछ उनसे नीचे दरख्त होते हैं, और कुछ फिर ये छोटे छोटे जो पौधे हमें नज़र आ रहे हैं इस तरह होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ हिफाजत ना हुई, कुछ इन दरख्तों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, और एक ही साइज़ के बड़े बड़े दरख्त तो हैं। अब हमें जाकर ये छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे हैं। हम इन अमूर पर बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा जनाब नज़र शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, एक बड़ी एनॉमली मुझे नज़र आ रही है। मसलन ये पौधा है, ये 3 साल का है जी। पहले ये बताएं कि ये बड़े बड़े दरख्त, बहुत बड़े दरख्त तो हैं, लेकिन जैसे मैं गुजारिश कर रहा था, कोई दरमियाने होने चाहिए थे, फिर उससे छोटे होने चाहिए थे। ये तो नहीं हो सकता कि अचानक ये बड़े दरख्त हो गए और फिर दरख्तों ने उगना छोड़ दिया। ये क्या मामला हुआ? प्राची साहब, जो नेचर का सिस्टम है उसमें आपने बिल्कुल, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। असूलन इसी तरह होता है, कुछ बहुत बड़े होते हैं जब मैच्योर होते हैं, कुछ उनके नीचे डोमिनेंट, सब डोमिनेंट, सप्रेस्ड एक इकोसिस्टम होता है जिसमें एक फैमिली की तरह दरख्त ग्रो करते हैं। जिस तरह माजी में अनफॉर्चुनेटली सेक्टर को बहुत ही इग्नोर किया गया, और ये जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, आप ये देख रहे हैं। हमने 2012 में GIZ से एक स्टडी करवाई और उसमें पता चला कि हमारी नाम के तो फॉरेस्ट हैं और 78% हमारे फॉरेस्ट ऐसे हैं कि जिसमें रिक्वायर्ड डेंसिटी नहीं है। डेंसिटी ये होती है कि आपकी कैनोपी ऊपर जो है जी वो मिली होनी चाहिए, आपको दरमियान फासला बहुत है और वो खत्म है। उसके बाद ये जो बिलियन ट्री का हमारा प्रोजेक्ट चला, इस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं और वो डिग्रेडेड हैं और तबाहशुदा हैं, उनको काटा गया, उन पे ग्रेजिंग हुई, उन पे आगे लगाई गई, वहां पे इंक्रोचमेंट हुआ, तो उसको रिहेबिलिटेट करना। अब ये पौधा जो मेरे सामने है, ये आप फरमा रहे हैं कि 3 साल यानी जब से ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ तो इसको प्रोटेक्ट किया गया। एग्जैक्टली। लेकिन ये पौधा एक और छोटा ये पौधा है, 1 साल सवा साल का, इसकी वो आप ये देख रहे हैं, और ये भी प्रोटेक्टेड है। ये प्रोटेक्टेड है। अब ये प्रोटेक्शन की वजह से डेवलप हो गया, इसे ग्रोथ मिल गई। अब ये जो है पहले कुछ भी नहीं था, इसको सर्वाइवल मिल गया। और ये बिल्कुल छोटा पौधा है, ये अभी उगा है, ये अभी इस सीजन, ये खुदरो पौधे हैं जी। एग्जैक्टली, ये खुदरो हैं, और ये आप देख रहे हैं कि इनके कौन हैं, कौन से सीड नीचे गिरते हैं मैच्योर होके। मई जून में ये नीचे गिरते हैं और उसके बाद जुलाई अगस्त आनवर्ड। ये फिर क्या टेक्निक्स हैं आपकी इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से, पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से? उसमें जो सबसे हमारा मेजर कंपोनेंट है, जिसके थ्रू हम 60% हमारा टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं, दैट इज थ्रू नेचर रीजनरेशन। इसमें कम्युनिटी की हमने बात की, कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करके एक पूरे इलाके को आपने रादर हिफाजती तहवील में ले लिया। वहाँ आपने नए उगने वाले पौधों को जो कुदरती तौर पर उग रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उन्हें चांस हम दे रहे हैं। इन पौधों को खतरात किस किस चीज से? इन पौधों को सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ग्रेजिंग का होता है, नंबर 1। यानी माल मवेशी, गाय भैंसें आकर जब चारा चरती हैं, बकरियां वो खा जाती हैं। दूसरा जो खतरा इनको होता है वो आग से होता है।
आग जब लग जाती है तो ये तबाह हो जाते हैं। बट ये तो जानवरों का काम नहीं है, ये पूरा दरख्त कटा हुआ है, जी जी ये तो इंसानों का काम जी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने यही आपसे कहा कि यहाँ पे वो टिम्बर माफिया का राज जो रहा है, अब ये सारी जितनी भी आप रीजनरेशन है कह रहे हैं माजी में काटे गए, जी काटे गए हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट का जो इस सूबे में है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका इनिशिएटिव है। जी एग्जैक्टली। अब अगर कल को जी। इलेक्शन है, सियासत है, पार्टियां हारती जीती रहती हैं, ये हुकूमत चली जाती है, जी जी तो इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल यानी कंटिन्यू यानी इसको मसलसल करने के लिए अगली हुकूमत के पास ये तो नहीं होगा कि वो कहें कि ये जो नक्स हैं इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दें। आप कोई कानून साजी हुई जी है? उसके लिए एक तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जून 2020 तक 2020 तक हमने फंड्स की प्रोविजन रखी हुई है, उसके लिए लेजिस्लेशन हुई है, फंड्स की प्रोविजन की एश्योरेंस हमारे पास है। पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पूरे मुल्क की पार्टी होने का दावा करती है और ज़ाहिर है उनकी सीटें भी हैं। किसी स्टेज पर इमरान खान, उनके साथी, उनके पार्टी लीडर्स ये सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट, मसलन कराची में इन्वायरमेंट का बड़ा मसला है, बहुत पोल्यूशन है, लाहौर में बड़ी पोल्यूशन है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, कोई ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट को उन इलाकों में भी फैलाया जाए? जी बिल्कुल, हम एक अगला बिलियन लॉन्च करने वाले हैं इसके बाद। यानी बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि इसके बाद एक और बिलियन इंशाल्लाह सुनामी दरख्तों और वो फरवरी में ही इंशाल्लाह वो अभी इसी महीने फरवरी जी इसी महीने के एंड में उसको हम अनाउंस कर रहे हैं। जहाँ तक आपने उसकी बात की कराची में, गुजरांवाला में, सखर में, फला, तो उस पे भी जो आपने बात की उस पे भी अभी काम चल रहा है। कल आरिफ अलवी साहब ने मुझे फोन किया, वो जो कराची के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हाँ जी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि टेक्निकली आप हमें बताएं कि हम मिलियन ट्री सुनामी के नाम से कराची में शुरू कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नादरीन, ब्रेक लेते हैं। बार बार यहाँ कम्युनिटी की बात की गई, बार बार कहा गया कि जो इन इलाकों के लोग हैं, जिस इलाके में हम हैं, इस तरह के या दीगर इलाकों के लोग, वो भी इस प्रोजेक्ट का पूरा हिस्सा हैं। तो कुछ अगले पोर्शन में जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चंद कम्युनिटी के लोगों के साथ हम बात करेंगे, उनकी फीडबैक लेंगे, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पिक्चर हम 1 अरब दरख्तों के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको आज बताना चाह रहे हैं, वो पिक्चर हमारी कंप्लीट हो सके। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू की ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में 1 अरब दरख्तों के हवाले से चैलेंजेस क्या है और जो लोग इस प्रोजेक्ट पे तनकीद करते हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और फिर उसका जवाब भी हम आपको सुनवा चुके हैं। हम पहले तो ऑफिशियल से बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हम वहीं पर हैं, यानी नॉर्दर्न खैबर पख्तूनख्वा में, और इस वक्त हम मकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नुकसान है तो इनका है, फ़ायदा है तो इनका है। इनके फ़ायदे क्या हैं और ये किस तरह से इस प्रोग्राम में हेल्पफुल भी हो सकते हैं। 1 अरब दरख्तों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने, उसको कामयाब बढ़ाने के लिए ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं, या इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फॉर दैट मैटर इनके क्या फ़वाइद हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ आला हुक्काम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह हमें पहले बताया गया कि उस एनक्लोजर की या उस ख़ास जगह की जहाँ पर प्रोटेक्शन पौधों को दी हुई है, तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है कि वो ख़ुद भी इस चीज़ को यकीनी बनाएं, ना उनके जानवर जाएं, ना वो ख़ुद पौधों को नुकसान पहुँचाएं। तो ये इस पोर्शन में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर ही इस वक्त मौजूद हैं इसी डिस्ट्रिक्ट के DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रिजवान शाह साहब, उनसे बात करते हैं। आपने शाह साहब बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया, कम्युनिटी को एंगेज किया है और अच्छे खासे लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। ये किस मैकेनिज़्म के तहत आप कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं? ये इस तरह है जी कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके टीवी चैनल ने इस एक नेशनल काज को जो है वो तरजीह बुनियादों पर जो है वो हमें टाइम दिया। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन सिस्टम है। हमारे पास कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारा प्रॉपर एक सिंडिकेट डायरेक्टरेट मौजूद है, उसके नीचे हम कम्युनिटीज़ की मीटिंग करते हैं,
हैं और फिर मीटिंग्स के बाद उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उनकी एक स्ट्रक्चर बॉडी हम बनाते हैं जिसको हम बाकायदा हम अपने साथ रजिस्टर्ड करते हैं। और वो रजिस्टर्ड जो हमारे साथ VDC के नाम से, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जो तंजीम होती है, वो इस तरह की जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये हमारे साथ शाना बशाना हर वक्त खड़े होते हैं। और जो भी एक्टिविटी, जो भी प्रोजेक्ट हमारा आता है उस हवाले से हम उनको ट्रेन करते हैं और वो ट्रेनिंग के मुताबिक जो है वो हमारे साथ हमेशा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नर्सरी लगाना हो, पौधा लगाना हो, उनकी हिफाजत करना हो, जिस भी हवाले से जो भी काम हो, तो वो हमारी एक जो ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ ये काम करते हैं। जी, आसिफ साहब मौजूद हैं, ये रेंज ऑफिसर है। नादरीन, जब कम्युनिटी आपने ट्रेंड कर दी जैसे शाह साहब बता रहे हैं, लेकिन हमेशा इंसान से तवक्को हमेशा अच्छे काम की नहीं रहती, कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होते हैं जिनसे आप हमेशा 100% आउटपुट मुस्बत किस्म काम की तवक्को नहीं कर सकते। कुछ तो एलिमेंट्स होते होंगे। आप रेंज ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी रेंज है ये जिसमें हम आए हुए हैं, तो फिर आप करते क्या हैं अगर आपके स्टैंडर्ड SOP की खिलाफ वर्जी की जाए? मसलन आपने देखा पौधों को नुकसान पहुंचा हुआ है, जानवर आ गए हैं या लोगों ने खुद नुकसान पहुंचाया, आप करते क्या हैं फिर? सर, हम तो सबसे पहले सदर से बात करते हैं, जो कम्युनिटी का सदर होता है VDC का, और सेक्रेटरी से। उनको कहते हैं कि यार ये फ़लाँ आदमी है आपका और ये जो है ना जी माल चराई कर रहा है या ये नुकसान पहुंचा रहा है। पहले तो वो कम्युनिटी ख़ुद उसको जो है बुला कर ये कहती है कि जी आपने ये नुकसान किया है और हम आप पर ये जुर्माना आयद करते हैं। क्योंकि उसमें ये जब पहले इनकी VDC बनती है तो हम उनके साथ ये बात करते हैं तय कि जो भी नुकसान करेगा उस VDC का आदमी हो ख्वाह या इलाके का आदमी हो, तो वो उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो वो VDC का सदर और सेक्रेटरी ये ख़ुद उस पर जुर्माना आयद करते हैं। वो जुर्माना जब पे करता है तो फिर उसके बाद जो है इस तरह की हरकत जो है बाकी कोई भी फिर नहीं करता। सर, आप VCD की बात कर रहे हैं, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक आम इंसानी फितरत है, खुला इलाका था आपके पास, आपके मवेशी जाते थे, आप लोग खुद घूमते फिरते थे। जब पाबंदियां लगें, रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं तो मसला बनता है। मसलन गैस नहीं है इस इलाके में, आपने चूल्हे जलाने हैं, उसके लिए लकड़ी काटनी है। जंगलात का महकमा कहता है कि लकड़ी नहीं काटनी। आपके मवेशी हैं, वो घूमते फिरते ग्रेजिंग करते हैं, मीन चरते हैं, चारा चरते हैं, उस पर पाबंदी लग गई तो उल्टा आप इनका साथ देते हैं, आपका तो नुकसान हो रहा होता है। कैसे आप अंदर से मानते हैं इस चीज़ को? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हमारे ये जंगलात हैं, अगर हमारी ये प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट है, ये इसकी प्राइस दिन ब दिन ऊपर आ रही हैं, तो ये सिर्फ इन जंगलात की वजह से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, या अगर हमारी यहाँ पे जगह हम वहाँ पे कुछ दुकानें बना रहे हैं, कुछ कारोबार कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से कर रहे हैं। और ये सब बाहर के लोगों का और ये जंगलात के प्रोटेक्शन का इसमें क्या रिश्ता? मैं बताता हूँ सर, बाहर के लोग इसलिए आते हैं कि ये जंगलात और उन पौधों की वजह से ये इलाका खूबसूरत है। अच्छा, इस खूबसूरती की वजह से बाहर के लोग यहाँ पे, हालांकि शायद कि इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस के बराबर है हमारे इस पहाड़ी इलाके की प्राइस भी, और ये सिर्फ इन जंगलात की खूबसूरती की वजह से। और इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो है, तो जब किसी पे आप जुर्माना करते हैं, जैसे आसिफ साहब रेंज ऑफिसर साहब कह रहे हैं, जुर्माना करते हैं तो वो तो नाराज होते होंगे, आपके अपने रिश्तेदार होंगे, अजीज होंगे, करीबी दोस्त होंगे। सर, हमने उन लोगों, सब लोगों को ये पहले हर बात समझा दी होती है। अभी हम अगर इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रॉपर्टी से उठा रहे हैं, दूसरी चीज़ों से उठा रहे हैं, तो इससे फिर हमने अपने माल मवेशी भी कम कर दिए हैं। तो माल मवेशी जो है वो इतने रखे हुए हैं जो घर में बंदा रख के, वे ऑफ लाइफ भी चेंज हो रहा है। मास्टर क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस जगह के रिहायशी हैं और जैसा आप बता रहे थे कि आप बहुत अरसे से, आपके फोर फादर्स यहाँ रहते हैं, ये जंगलात का महकमा है, ये अपना काम कर रहे हैं, 1 अरब दरख्त लग रहे हैं आपके इलाके में, ये 2-3 इनक्लोजर हमने देखे हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों का? सर, असल बात यह है कि जंगलात की कटाई रुकवाई है इन्होंने, बड़े अच्छे काम किए हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी
और जंगल तबाह बर्बाद हो रहे थे। हमारा जितना भी माशरा सारा ख़राब हो रहा था, तो जंगलों की कटाई इन्होंने रोकी है। बहुत प्यारा काम हुआ है। KPK में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं, ख़ास करके ये जंगलात वाला। तो आप बताएं, आपको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इस सारे मंसूबे से? आप भी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के एक शहरी हैं, आप इस जगह के रहने वाले हैं, आपके इधर भी जंगलात वालों ने प्रिजर्वेशन किया है, इधर भी प्रिजर्वेशन किया है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ज़ाती तौर पर? मुझे सबसे पहले तो ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे घर में नौकरी मिल गई है। उसके अलावा हमारी जो गैर कौन सी कानूनी नौकरी मिली है इस मंसूबे की वजह से? ये नेगेबान हूँ मैं। आप जंगलात के निगहबान हैं, घर बैठे आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 15,000। और आप ये निगहबानी करते हैं इसकी? जी। और किस चीज़ को आप रोकते हैं? हमने गैर कानूनी कटाई को रोका हुआ है, नौपौध बचाई हुई है, आग से बचाया हुआ है जंगल को। और ये जो जानवर तो आप लोगों के अपने होते होंगे? जानवर लोगों ने कम कर दिए हैं और जंगल में छोड़ते भी नहीं हैं। ये बताएं, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, पूरे सूबे में 1 अरब दरख्त लगाए जा रहे हैं, इस जगह को छोड़ के बाकी सूबे के बारे में भी आप सोचते होंगे। क्या सोचते हैं कि आपके सूबे में क्या हो जाएगा अगर वाकई 1 अरब दरख्त लग गया तो? सर अगर 1 अरब दरख्त लग गया तो इस इलाके में जो है वो खूबसूरती हो जाएगी। नंबर 1 खूबसूरती हो जाएगी, उसमें फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ज़ाती तौर पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? सर मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, मैं भी निगहबान हूँ, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं। तो ये आपके इस इलाके के कितने लोगों को रोज़गार मिला है सिर्फ निगहबानी के उस कैटेगरी में? मेरे ख्याल में 75 लोग हैं ये। और ये जंगल की हिफाजत करने के लिए रोज़गार मिला है आपको? जी। आप बड़े हैं जी इस इलाके के, आपने तो इससे पहले के अदवार भी देखे, आपने हो सकता है जिस ज़माने में आप नौजवान हो यहाँ जंगल होते हों, फिर लोगों ने लकड़ियाँ काट लीं, जंगल बर्बाद हो गए, अब दोबारा लग रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कभी जंगल था, खूबसूरत जगह थी, फिर जंगल काट लिया गया, अब दोबारा जंगल लगाया जा रहा है, ये उम्मीद नज़र आती है आपको अच्छे मुस्तकबिल? जी जी बिल्कुल उम्मीद नज़र आती है जी। पहले फिर क्यों जंगल काटा गया? बस पहले बेरोज़गारी थी, कोई कारोबार नहीं थी, कोई काम नहीं था लोगों का, यही काम था कि दरख्त काटा तो बेचना शुरू कर दिया। इस वक्त माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के महकमा जंगलात ने कई लोगों को रोज़गार भी दे दिया, बकाया जिसले थोड़ा सा पाबंदी भी हुई तो उस भी ज़्यादा तौर पर लोग जो है ना अपनी कारोबार शुरू करी की ने, कोई किधर काम कर रहा है, कोई ज़्यादा तौर पर अक्सर लोग बाहर ने आ गए, उसने विचों ज़्यादा तरक्की जी होएगी। और एक मजदूर बन के जासी तो वह भी 700 रुपया 800 रुपया शामी दिहाड़ निकल के आ जासी। बहुत शुक्रिया जी, आप सब लोगों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा और मैं ज़ाती तौर पर भी, मेरे अंदर भी एक पैशन है कि पाकिस्तान में दरख्त लगने चाहिए, पाकिस्तान में सरसब्ज होना चाहिए पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर हरियाली होनी चाहिए। मैं ख़ुद एक रूरल बैकग्राउंड का आदमी हूँ और इरिगेटेड जहाँ पर ज़मीनें हैं मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सब्ज़ा